کلام مقدس کو پڑھ کے یعنی اپنی آنکھوں کا استعمال کر کے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میوزک سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور زبان سے خدا کی حمد و ستائش کر کے اور پھر آنکھوں سے کلام مقدس کو پڑھ کے خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ خدا کی عبادت کرنے کا یہ طریقہ ہے، خدا کی عبادت کرنے کا یہ طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے، وہ ہے پورے بدن کی عبادت۔ پورے بدن کی عبادت کیسے؟ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے بدن سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یوئیل کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو۔ پڑھیے گا، یوئیل پہلا باب 14ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ جی، روزہ کے لیے ایک دن، روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو اور مقدس محفل فراہم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے، کہ مقدس محفل فراہم کی جائے اور ساتھ ایک دن روزہ کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے۔ تو اگر تھوڑا سا آگے چلیں، تھوڑا سا آگے پڑھیں، اسی بک میں رہتے ہوئے دوسرا باب اس کی 15ویں آیت لکھا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ یہ دوبارہ وہی بات لکھی گئی، مقدس محفل فراہم کرو، روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں روزہ رکھا جائے۔ پھر اگر ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کو پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے جو فریسی تھے وہ ایک ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 2 روزے۔ میرے ساتھ نکالیے 18واں باب بعد میں ہے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، جہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ 2 آدمی آئے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دعا کر رہے تھے۔ تو ایک آدمی بتا رہا تھا اپنے سارے کام کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، اور دوسرا بندہ جو نا وہ روتا پریشان تھا۔ جی پڑھیے گا، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یقین دیتا۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا، میں ہفتے میں کتنی بار روزہ رکھتا ہوں؟ 2 بار۔ فریسی بولتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دہی کی دیتا ہوں۔ ہفتے میں فریسی کتنی دفعہ روزہ رکھتے تھے؟ 2 بار۔ پہلے لکھا تھا کہ ایک دن مقرر کرو، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تو لوگ کیا کرتے تھے پہلے وقت میں؟ فریسی کیا کرتے تھے؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار۔ ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے، اگر تمہاری راس بازی، اس نے فرمایا اگر تمہاری راس بازی فقیوں فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر وہ 2 بار روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 2 سے زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے، اعمال کی کتاب میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ پولوس کی جب بینائی جاتی رہی تو پولوس نے 3 دن اور رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ
पिया। मेरे साथ निकालिए अमाल 9 बाब की 9 आयत। और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। 3 दिन रात तक वो ना देख सका और ना उसने कुछ खाया ना पिया, ना कुछ खाया ना पिया। तो इसका मतलब ये है कि उसने रोजा रखा। ऐसा है नहीं, उसने ये नियत करके नहीं इस तरह किया कि मैं 3 दिन के लिए रोजा रखता हूँ, बल्कि उसने तो अपनी परेशानी में ही 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। लेकिन एक रोजा और है जिसमें ये वाकई रोजा रखा गया। अगर हम आसर की किताब पढ़ें तो उसमें 4 बाब 16वीं आयत में लिखा है कि उसने आसर ने रोजा रखवाया अपनी पूरी कौम को। 4 बाब 16वीं आयत। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी शुक्रिया जी। 3 दिन और 3 रात क्या करो तुम लोग? क्या करो? आसर ने क्या बोला? 3 दिन और 3 रात तुम क्या करो? रोजा रखो। इसका मतलब ये 3 दिन रात का ये रोजा है, क्योंकि रोजे की नीयत से 3 दिन और रात कुछ खाया नहीं जाएगा, तो ये रोजा है। लेकिन जो पहले हमने अमाल का हवाला पढ़ा उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि उसने 3 दिन रात कुछ ना खाया, लेकिन ये नहीं कि उसने रोजे की नीयत से इस तरह किया। फलूस फिर अगर हम यूना की किताब को पढ़ें तो उसमें जब यूना मछली के पेट में चला गया तो फिर क्या हुआ कि ना तो उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। 3 दिन और 3 रात ये मछली के पेट में रहा, तो क्या उसने रोजा रखा? अफ्तारी की, सहरी की, उसने कुछ किया? उसने नियत, रोजे की नियत से उसने कुछ खाया पिया? मेरे साथ पहला बाब 17वीं आयत को पढ़ लीजिए। पहला बाब 17वीं। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। जी, 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। तो ना तो उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। लेकिन इससे पहले उसने ये रोजा की नियत नहीं की थी कि मैं 3 दिन रात का रोजा रख रहा हूँ, इसलिए इसका भी रोजा नहीं गिना जा सकता। इसलिए तो वहाँ कुछ मौजूद ही नहीं था उसके खाने पीने के लिए, तो फिर उसने कैसे खाता पीता? तो अगर थोड़ा सा इसको यूना की किताब में 3रा बाब रखिए, ऐसे पढ़े। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदे ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और दनाव वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो। और शुक्रिया जी, ये मुनादी की गई कि 40 दिन तक ना कुछ खाया जाए ना कुछ पिया जाए। तो ये कुछ ना खाना ना पीना और ये रोजा रख के खुद नियत करके रोजा रखना, ये मुनादी, ये रोजे की मुनादी है और ये रोजा है।
40 दिन तक रोजा किसने रखा? नैनवा शहर वालों ने 40 दिन का रोजा रखा। फिर अगर हम पढ़े खरूज में, तो खरूज में 34 बाब की 28 आयत, उसमें मूसा 40 दिन 40 रात खुदा के सामने खुदा की हजूरी में रहा जब वो 10 काम लेने गया। तो 40 दिन और 40 रात वहाँ पे रहा। पढ़ सकते हैं? सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावन के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर शुक्रिया जी। मूसा ने 40 दिन तक ना कुछ रोटी खाई और ना पानी पिया। तो इसका मतलब ये है कि 40 दिन 40 रात तक मूसा पहाड़ में खुदा की हजूरी में रहा। लेकिन वहाँ पे भी अगर उसके पास कुछ खाने पीने के लिए कुछ होता तो वो जरूर खाता। तो 40 दिन और 40 रात मूसा ने क्या किया? खुदा की हजूरी में गुजारे। फिर अगर हम पहला सलातीन 19 बाब अगर 8वीं आयत को पढ़ें, उसमें भी लिखा है कि पहले एलिया ने कुछ खाया पिया, उसके बाद 40 रात और 40 दिन उसने सफर किया। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। शुक्रिया जी। एलिया भी पहले हमने मूसा का देखा, तो मूसा जब खुदा की हजूरी में 10 काम लेने गया तो कितने दिन वहां पे गुजारे? कितने दिन गुजारे? कितने दिन गुजारे नहीं पता चला। 40 दिन और 40 रात गुजारे। और अभी हमने देखा कि 40 दिन और 40 रात एलिया ने क्या किया है? सफर किया। 40 दिन और 40 रात एलिया ने क्या किया? सफर किया। तो इसने भी ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस को उसका 4था बाब पढ़ें, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि यीशु ने भी 40 दिन और 40 रात गुजारे हैं और कुछ नहीं खाया पिया। जी पढ़िएगा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 4था बाब दूसरी आयत। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। हाँ जी, बहुत अच्छा तर्जुमा हुआ है कलाम मुकद्दस का। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बड़ी वेल क्लियर बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये 40 दिन और 40 रात का यीशु ने रोजा रखा। अगर वहाँ मौजूद कोई चीज होती तो यकीनन यीशु खाते और पीते, लेकिन यहाँ पे लिखा है 40 दिन और 40 रात यीशु ने क्या किया? फाका किया। 40 दिन और 40 रात यीशु ने क्या किया? फाका किया। फाका और रोजे में इसका मतलब फर्क आते हैं। पहले मैं कभी फाके की बात करता था, फिर रोजे की बात करता था, कभी फाके की कभी रोजे की। अभी यहाँ पे बात आकर क्लियर हो जाती है कि फाका और चीज है, रोजा और चीज है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ही लिखा हुआ है 40 दिन और 40 रात गुजारने के बाद आखिर को उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात फाका करने के बाद, क्या पढ़ा हमने? फाका करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाका और रोजा में फर्क देखना है। फाका क्या है और रोजा क्या है? फर्क, फाका और रोजा में फर्क है या नहीं? फर्क है या नहीं? फाका और रोजा में फर्क वाज़े हमें ये पता चलता है कि फाका कभी भी हम खुदा नखासा किसी के पास खाने पीने को कुछ ना हो तो बोलते हैं अभी तो फाकों तक नौबत पहुंच गई है, तो फाकों से भूखे मरते हैं, फाकों में वक्त गुजर। ऐसा वक्त जिसमें इंसान के पास कुछ खाने पीने के लिए ना हो उसको फाका बोलते हैं।
जब इंसान के पास कुछ खाने पीने के लिए ना हो और वो वक्त गुजरे तो उसको क्या बोलते हैं? फाका। और वो वक्त जो इंसान खुदा की रजा हासिल करने के लिए खुद अपनी मर्जी से कुछ ना खाए ना कुछ पिए, उसको क्या बोलते हैं? रोजा। खुदा की रजा हासिल करने के लिए जो कुछ ना खाए और ना पिए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? रोजा। तो अभी क्लियर हुआ कि रोजा और फाका में क्या फर्क है। बाइबल मुकद्दस में हमने हवाला जात पढ़े जिसमें लोगों ने फाका भी किया और रोजा भी रखा। जब रोजा रखा तो अभी जब हम देखते हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में, तो हम बोलते हैं खुदा का शुक्र है कि अभी रोजे चल रहे हैं। रखे या ना रखे रोजे चल रहे हैं, रोजों के दिन हैं। कलाम मुकद्दस में किसी जगह नहीं लिखा गया कि ये इस टाइम शुरू होंगे और इस महीने में शुरू होंगे और 40 रोजे रखे जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर लिखी हुई है। इसका मतलब फिर 40 रोजे ये कहाँ से आ गया? ये जो मैंने पहले फिगर्स बताई कैसे, अभी तो हमने इब्राहिम की बात नहीं की जब उसने 40 दिन 40 रात गुजारी। हमने मूसा की बात की, हमने मूसा की बात की और हमने एलिया की बात की और हमने यीशु की बात की। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक कमेटी ने आला सतह की जो क्रिश्चियनिटी की वर्ल्ड वाइड कमेटी उसने डिसाइड किया कि 40 रोजे मुकर्रर कर दिए जाए। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, यीशु के क्या अल्फाज हैं? यीशु के अल्फाज पढ़ने तो मेरे साथ निकालिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 6वां बाब उसकी 16वीं है। और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो। तो इसमें 40 की फिगर आपको बता दी कि 40 में कहाँ पे है। लेकिन जो अभी 40 रोजे हमारे हैं ये हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस कमेटी की जिसने ये सिस्टम बनाया। लेकिन उसमें अतवार का रोजा होता भाई जी? नहीं, अतवार का रोजा नहीं होता। तो क्या फिर वो 40 में से अतवार कहाँ से निकल गई, कैसे निकल गई? अतवार की छुट्टी हो गई। यीशु ने 40 दिन और 40 रात इकट्ठे फिर किया था। अगर यीशु के रोजे को लेना, दरमियान में 4 अतवार नहीं होते। तो 40 दिन और 40 रात की फिगर इसी तरह निकली, ये मुकर्रर की। लेकिन यीशु ने क्या फरमाया? जब तुम रोजा रखो, जब तुम, जिस वक्त तुम रोजा रखो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपनी मर्जी से टाइम फिक्स कर लेंगे तो वो भी रोजा होगा। मैं एक बहुत पहले की बात है, जब मैं मस्कत में था, वहाँ मेरी किसी खुदा के बंदे पास्टर साहब से बात हुई। तो उन्होंने बोला भाई, एक भाई मुझे वहाँ पे मिले, पास्टर साहब के पास जब गए तो वहाँ पे एक भाई मिले। तो वो बोलने लगे कि पानी पीने लगे तो बोलने लगे नहीं, खाना खाने लगे तो बोलने लगे भाई रोज़ा, मेरा रोज़ा है। और बाद में थोड़ी देर के बाद फ्रूट भी खा लिया और पानी भी पी लिया। तो मैंने कहा भाई जी आपने तो बोला तो मेरा रोज़ा है। बोलते हाँ मेरा रोज़ा है। मैंने कहा कैसा रोज़ा है? बोलते हैं भाई जी ये भी रोज़ा होता है। जब हम छोटे से थे तो उस वक्त बड़े दोस्त हमारे दूसरे मज़ाहिब के बोलते थे तो भाई वो आपका रोज़ा कैसे रखते हैं? वो तवे की पकी हुई चीज़ नहीं खाते और बाकी खा लेते हैं, इस तरह का रोज़ा रखते हैं। हो सकता है आपके सामने भी कोई बात आई हो। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं। रोज़े का मतलब ये है कि जैसे लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा कि नैनवा के रोज़ा लोगों ने रोज़ा रखा, जैसे मर्दकी ने रोज़ा रखवाया, आसर मलका ने रोज़ा रखवाया कि ना कुछ खाया ना कुछ पिया, रोज़ा ये है। तो फिर ये अपनी पसंद का, अपनी मर्जी से कहाँ से आ गया रोज़ा?
کہ یہ چیز کھا لیں، یہ نہیں کھائیں گے تو پھر روزہ ہو جائے گا. ہاں میرے ساتھ نکالیے، اس کو بھی دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے دانیل کی کتاب، اس کا 10واں باب دوسری آیت. میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں داخل پایا اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. جی اس آیت کو لوگ لے کر یہ بولتے ہیں کہ نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی روزے کی ایک قسم ہے کہ انسان لذیذ کھانا نہ کھائے اور گوشت نہ کھائے اور میں نہ پیے تو یہ بھی روزہ ہے. حالانکہ یہ روزہ ہرگز نہیں. روزہ وہی ہے جس میں نہ کچھ کھایا جائے اور نہ کچھ پیا جائے. تو پھر بہت سارے لوگ کبھی بات کرتے ہیں کہ روزہ پھر کس طرح رکھنا چاہیے، کیسے رکھنا چاہیے. تو روزہ وہ روزہ ہے جس میں نہ کچھ کھایا جائے اور نہ کچھ پیا جائے. پھر روزے کا ٹائم ہے. روزے کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ کب سے کب تک ہے؟ اگر کوئی اپنی مرضی سے ٹائم فریم بناتا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے. جو کرسچینٹی کا دن ہے، جو یہودیوں کا دن تھا، وہ شام سے شروع ہوتا، اور اسی کو دیکھ کر یا اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام بھی جب شام کو رات کو چاند نکلتا ہے تو پھر روزے شروع کرتے ہیں. تو جو یہودیوں کا دن تھا، جو مسیحیت کا دن ہے، وہ شام سے شروع ہوتا ہے. بس شام ہوئی، صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا، یہی لکھا ہوا. تو شام کو روزہ رکھا جاتا ہے اور اگلی شام کو کھولا جاتا ہے. 24 گھنٹے روزہ رکھا جاتا ہے. اس میں نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پیا جاتا ہے. یہ ہے روزہ. تو یسوع نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ صرف انہی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ سال کے کسی دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں جب تم کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس میں کوئی دن کی بات ہوئی نہ اس میں کوئی مہینے کی بات ہوئی. تو جب تم روزہ رکھو تو اس کا مطلب جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو واقعی خدا کی بندگی عبادت کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں ٹائم گزارتے ہیں. کچھ لوگ وقت گزاری کرتے ہیں اور ٹائم پورا کرتے ہیں اور اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی خوشی مناتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے یسایہ کی کتاب، اس کا 58 چیپٹر یعنی 58. تیسری آیت. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا. ہم نے کس لیے روزے رکھے؟ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر بولتے ہیں ہم نے تو بڑی دعائیں کی، بڑی دعائیں کروائیں، ہمارا کام ہی نہیں ہوا. جس مقصد کے لیے روزہ رکھا تھا وہ کام ہی نہیں ہوا. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو وہ اسی طرح پہلے بھی کلام مقدس میں لکھا، پہلے بھی لوگ اسی طرح کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے کیسے لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. لیکن ایک وجہ ہے، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ نئی حکم پذیر ہو رہا ہے. جی دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. اپنی خوشی کے طالب رہتے ہیں. پہلے تو یہ کہ جب ہم روزہ رکھیں تو پھر کیا کریں کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کس نے روزہ رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ماں یا بہن جب کھانا بنانے لگتی ہے تو ان کو بھی پتہ نہ چلے، پتہ چلا آپ کا بھی کھانا بنا دیا اور ضائع ہو جائے، فائدہ کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شو نہ کیا جائے، ریاکاری نہ کی جائے. بھائی جی مجھے آج کچھ نہیں کرنا، میں بہت
थका हुआ पहले से रोजा लग रहा है, तो इसका मतलब आप ये शो कर रहे हैं, ये रियाकारी में आता है। किसी दूसरे को पता ना चले कि वाकई आप रोजे से हैं। जी, जब रोजा रख के भी अपनी खुशी के ताल्लुक रहते हैं, अच्छा शाम को जब रोजा खुलेगा अफ्तार होगा तो उसमें मैं ये पकाऊंगा, ये खाऊंगा, ये लाएंगे, ये वाइन लाएंगे, तो फिर अपनी खुशी होगी, ये है अपनी खुशी। जी, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। हाँ, खुद नहीं करते क्योंकि मेरा तो रोजा है। और सख्त मेहनत किससे करवाते हो? किससे करवाते हो? लोगों से करवाते हो सख्त मेहनत। आप खुद रोजा रख लेना और दूसरों से सख्त मेहनत करवाना। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। जी। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। जी हाँ, तुम रोजा तो रखते हो लेकिन इस तरह का नहीं रखते। किस तरह का नहीं रखते? कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। इसका मतलब ये हो कि रोजा कैसा होना चाहिए? रोजा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इंसान की आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। रोजा रख के दुआ करते हैं तो उसका मजा ही और होता है। यकीनन खुदा अपने लोगों की दुआ को सुनता है। जी, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जी, क्या वो रोजा, खुदा बोलता है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े जी, और जुए के बंधन खोले जी, और मजलूमों को आजाद करे जी, कि हर एक जुए को तोड़ डाले। जी। 7वीं आयत, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। शुक्रिया जी। तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। खुद हम रोजा रखें और अगर कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई जरूरतमंद है तो उसका ख्याल ना रखे तो उस रोजे का कोई फायदा नहीं। रोजे का मतलब है अपने आप को दुख देना और खुदा के सामने क्रिया जारी करना। जब रोजा रख के इंसान दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ ज्यादा सुनता है, करीब होकर सुनता है, क्योंकि वो दुनिया की ख्वाहिशों में नहीं रहता है। फिर हम ये समझते हैं कि शायद जब हम रोज खाते पीते नहीं हैं और नियत करके रोजा रखते हैं तो सिर्फ हमारे पेट का रोजा, हमने खाना पीना नहीं कुछ भी नहीं। रोजा पूरे बदन का रोजा है। आंखों से किसी को बुरी नजर से न देखें, कानों से किसी की बदगोई ना सुने, उल्टे सीधे नगमे ना सुने, जबान से गाली ना दे, किसी को बुरा भला ना करना, किसी का दिल ना दुखाए और किसी बुराई की तरफ चल के ना जाए। पाँव का रोजा, हाथों से किसी के साथ जुल्म ना करें, पूरे बदन का रोजा होना चाहिए। जब हम रोजा रखते हैं तो सिर्फ पेट का रोजा नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे बदन का रोजा होना चाहिए। आंखों से कलामे मुकद्दस पढ़े। यीशु ने यही तो फरमाया कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो तो क्या करो? पढ़िएगा मत्ती 9, मत्ती 6 और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जी हाँ, यीशु ने ये बात सारी जो पहले हमने बातें की ये क्लियर कर दी कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपना मुंह जी अपनी सूरत शक्ल ना बिगाड़ो, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं मुंह बिगाड़ते हैं। आज बहुत रोजा रखा है,
वो क्या करते हैं, अपना मुंह बिगाड़ते हैं और दूसरों पे शो करते हैं कि मैं आज रोजे से हूँ। जी ताकि लोग उनको रोजादार जाने। हाँ, ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। बहुत सारे लोग रोजा रख के समझते हैं कि सबको पता चले कि मेरा रोजा। जी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। हाँ जी, जिस तरह का उन्होंने रोजा रखा उसी तरह का उन्होंने अजर पा लिया। बल्कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। जी, मुंह धो और तेल डाल। यहाँ पे तेल के दो मानी है। एक मानी तो वाकई जो हम सर पे लगाते हैं वो लगाया जाए, और दूसरा कलामे मुकद्दस को पढ़ा जाए। जी ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। जी, ताकि दूसरे नहीं, दूसरों को पता ना चले, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। और रोजादार जान के फिर अगला कदम भी है, जब वो तुझे रोजादार जानेगा तो फिर अगला काम होगा, क्या होगा? इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तुझे बदला देगा, फिर वो बदला देगा। अगर हम चाहते हैं कि हम रोजा रखें और रोजे का हमें बदला मिले, जो पोशीदगी में हमारा खुदा बाप है वो हमें बदला दे और हमें रोजे का पूरा पूरा बदला मिले, तो फिर अपने रोजे को भी पोशीदगी में रखना होगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा का शुक्र अदा करें।